Maha, we'll wait for another 2 minutes for everyone else to join in. Then we'll start, okay? ठीक है सर। किसने ज्वाइन किया अभी? Is it Iman? Iman, is this you? Okay, it's Saira. Okay, Saira, we're just waiting for another minute or two for anyone else who wants to join in, then we'll begin. All right, sir. Okay, we're beginning now. Uh, Saira, just a recap of what we did in the previous class. We were talking about the macroeconomic objectives that can have an impact on the business activity. Basically, what your economy is going through is very important whenever you're doing a business. And in that, we talked about what can be the government objectives and how can the business respond during that time. So there are 3 to 4 important government objectives that every economy or every government has. The first one is economic growth. Economic growth basically means that when you're producing more output in comparison to the previous year. All right. So if we say that in the previous years you made 2000 units of output, and in this year you are making 2200 units of output, that means you've achieved economic growth, and you can measure it in no, in terms of percentage. All right. So this is what economic growth is. It is basically compared through the GDP. If your GDP has increased over time, that means that you've achieved economic growth. Okay, the second one, the second important objective is low inflation. So inflation से तो हमें बड़ा easily समझ आता है that when there is an general increase in the price level, that is inflation. So every government would want to make sure that your price level is not that high. And the reason being that if the price level is very high, it becomes difficult for consumers to buy goods. क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि उनकी जो इनकम होती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, आई विल गिव अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इनकम जो है वो 20,000 रुपीज है, ठीक है, उस 20,000 रुपीज में ही कुड अफोर्ड फॉर एग्जांपल 10 kgs ऑफ sugar. Let's just take an example. Now, with the same 20,000 rupees, because of inflation, as the prices of sugar has increased, you eventually can afford only 6 kgs of sugar. So, with the same level of income, your buying power decreases. So, that is a huge problem, and the government wishes to control that inflation. Another major objective of the government is to control unemployment. Unemployment का मतलब होता है the people who are willing and able to work. देखो, willing का मतलब है जो काम करना चाहते हैं, और able का मतलब है जो काम कर सकते हैं. If they are not getting a job, that is a problem for the government. क्यों? दो बातों की वजह से. Government will have to provide them unemployment benefits. मतलब पाकिस्तान में तो नहीं होता, but in the UK, in the US and other developed economies, what happens is that the government will eventually have to provide these people with the अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं इनको, खाना देना पड़ता है इनको, हाउसिंग शेल्टर कुछ ना कुछ देना पड़ता है.
Second is that the government's tax revenue would be reduced. देखो जब इनके पास जॉब नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट का ओवरऑल टैक्स कम हो जाएगा। और लास्टली आप अपने पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि अगर इफ यू कुड मेक श्योर दैट 100 पीपल वर्क इन द इकोनॉमी, अब आपके पास 80 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो 20 लोग काम नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ दैट योर ओवरऑल कैपेसिटी और ओवरऑल आउटपुट इज लेस। ठीक है, तो ये मेजर हमारे पॉइंट्स हैं। वी विल फर्दर डिस्कस दिस। हम इन्फ्लेशन पे आ गए थे, इकोनॉमिक ग्रोथ वी हैड कंप्लीटेड पूरा। नाउ वील बी डूइंग इन्फ्लेशन। दो तरीके के कॉजेस थे इन्फ्लेशन के। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है दैट व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है सो दे वुड नो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अगर इनमें से किसी की भी प्राइस बढ़ती जाती है दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट बिकम्स एक्सपेंसिव, ठीक है, या कॉस्टली। और फिर वो क्या होता है कि कोई प्रोड्यूसर इतना अच्छा नहीं होता दैट ही टेक्स द बर्डन ऑन हिमसेल्फ, ही और शी सिंपली passes द बर्डन ऑन द कंज्यूमर। ठीक है, अगर पहले एक गुड बनाने में 100 रुपए का एक गुड बनता था एंड दे यूज टू सेल इट फॉर 200, ठीक है, नाउ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। वो कैसे इंक्रीज हो सकती है? आपकी वेजेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन बन गया था या गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट लगा दिया था, दैट्स व्हाई योर प्रोडक्शन इंक्रीज। या इफ यू यूज टू इंपोर्ट गुड्स एंड द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज्ड, तो अब आपको ये गुड्स किस, यू विल हैव टू पास दिस कॉस्ट टू the consumers. So now you will be selling the same product for 225. That means you have incurred cost push inflation. ठीक है, अब ये तीन एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए। अच्छा, अगर आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है तो आपके पास क्या मसला हो जाता है? योर इम्पोर्ट्स बिकम्स एक्सपेंसिव, and if you actually use your imports like use your imports का मतलब क्या है? अगर imports आपके वो हैं रॉ मटेरियल्स हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इंपोर्ट्स आपके रॉ मटेरियल्स हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज दे विल बिकम एक्सपेंसिव, एंड व्हेन दे विल बिकम एक्सपेंसिव यू विल यूज दोज, you will increase the prices of the goods. Second is world demand for materials raising their prices। जैसे अगर ऑयल की प्राइस ओवरऑल पूरी दुनिया में बढ़ती है, अब ऑयल याद रखो हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, मतलब हर से कहने का मतलब है ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मशीन्स यूज ऑयल, तो इसलिए रॉ मटेरियल बन जाता है। तो वेन एवर द कॉस्ट ऑफ ऑयल इंक्रीजेस, इसका मतलब है इन्फ्लेशन इज ऑन द कार्ड्स। लास्ट इज वेज डिमांड। अगर वर्कर्स ज्यादा वेज डिमांड करते हैं, अगर जो है वो ट्रेड यूनियंस ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी रीजन की वजह से वेजेस बढ़ती हैं, तो सिंपल बात क्या होती है? दैट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली यू विल हैव टू रेज द प्राइसेस। अब मुझे बता दो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, परफेक्ट। किसी और को? No, sir. ओके, सो द सेकंड वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? जब आपकी कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज करती रहती है, जैसे जो इकोनॉमिक बूम कल हमने ईमान पढ़ा था, इकोनॉमिक बूम इज द टाइम व्हेन लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैपनिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड गोइंग ऑन। याद रखो, these are economic concepts, whenever there's huge demand the prices will increase। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो कि कोविड के टाइम में आपने सैनिटाइजर्स और मास्क को देखा था। जब कोविड के टाइम में वही सैनिटाइजर विच यूज टू सेल फॉर 100 and 150 रुपीज
was being sold for 750, was being sold for 500. Why was that? Because during this time they got to know that the demand for these sanitizers have increased, and it's an important like product right now. तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको सप्लाई कर देंगे, बट बिकॉज द डिमांड इज हाई विल डू दैट एट अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, तो ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब आपकी डिमांड फोर्सेस योर प्राइसेस टू गो अप, एंड व्हेन वंस योर प्राइसेस गो अप, सो द इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू हैपन। अब हमें ये नहीं पढ़ना है दीज आर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स, वी नीड टू नो दैट what will happen that if this inflation happens in the country. We need to see that what will happen to the business because of this inflation. देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो कॉस्ट इंक्रीज होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, ये सीधा सीधा कंज्यूमर को पास हो जाती है। ठीक है, अगर ये एक जनरल इंक्रीज है, दैट मीन्स कि ये नहीं हो रहा दैट ओनली यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मतलब अगर आपके competitors are also facing this problem, so eventually everyone will increase the price and you're happy to pass this price on to the consumer. But if only you are facing this problem, then you cannot pass on this price, otherwise the demand for your products will fall. The second is the real value of debts owed by companies will fall. अब ये बड़ा important point होता है। इसका ये मतलब होता है that if you have taken a loan, ठीक है, अगर आपने लोन लिया था जब इन्फ्लेशन नहीं थी, तो जब आप इन्फ्लेशन के टाइम लोन रिटर्न करोगे, तो क्या होगा, उस लोन की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड टेकन 100,000 लोन, और उस 100,000 के लोन में उस वक्त जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1,000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आता था। ठीक है, लेकिन अब उस 100,000 के अंदर 800 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आएगा। तो दैट मीन्स कि वैल्यू ऑफ योर डेट हैज डिक्रीज्ड। मतलब अब आप 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है जब आप उसको रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये चीज जो है ना, ये जो जो डेटर्स होते हैं, जो पैसे रिटर्न कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन इज एक्चुअली गुड फॉर देम, बिकॉज नाउ दे आर रिटर्निंग मनी विच इज लाइक लेस वैल्यूएबल। ठीक है, और क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसे दिए होते हैं उनके लिए ये एक बड़ा बुरा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एट द टाइम दे गेव मनी द 100,000, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, एंड एट द टाइम दैट दे आर गेटिंग इट बैक द वैल्यू इज लेस। ठीक है, अब अदर देन दैट और क्या होता है, राइजिंग प्राइसेस आर आल्सो लाइकली टू अफेक्ट एसेट्स हेल्ड बाय फर्म्स, सो द वैल्यू ऑफ दीज फिक्स्ड एसेट्स कुड राइज। अभी तक हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन टू दी बिजनेसेस। तो इसका एडवांटेज क्या है कि देखो, अगर इन्फ्लेशन हो गई और आपको ये नजर आता है दैट बिजनेस जो है वो इंक्रीज, वो आपके जो एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, तो इन केस अल्लाह ना करे, इफ यू वांट टू गो एंड सेल दोज एसेट्स, यू विल गेट अ हायर प्राइस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो दिस कैन बी एडवांटेजियस फॉर द फॉर द बिजनेस कि भाई अगर हमें जरूरत है, सो वी कैन सेल द एसेट एट अ हायर प्राइस। लास्टली, अगर आपने इन्वेंट्री सस्ते में खरीदी हुई है, a lot of people earned through this. During the 2007 crisis in Pakistan, शुगर मिल्स ने किस तरीके से कमाया था? They had raw material, they had a stock which cost them around 15 to 20 rupees per kg, and sugar used to sell at 30-35 rupees per kg at max. Not even that, 25 to 30 was the limit. पर वो eventually during that time what happened was that sugar was being sold for 85 to 100 rupees. That means कि उनका 500 to 600% प्रॉफिट पे चले गए थे वो। तो ये वो वाले बिजनेसेस जो स्टॉक करके रखते हैं और उनको नजर आता है बाद में इन्फ्लेशन हो गई, तो उनके लिए दिस बिकम्स अ ह्यूज एडवांटेज। ठीक है, ये तो थे एडवांटेज, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ड्रॉबैक क्या होता है?
अब जो आपका एम्प्लॉय है, he is earning the same amount as he used to earn the previous month or the previous year, but because of inflation the real value, the real income of his will decrease. ठीक है, तो अब जब रियल इनकम उसकी कम हो जाएगी, रियल इनकम मैंने आपको बता दिया कि वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होती है, द वैल्यू ऑफ इनकम, वो अगर कम हो जाएगी तो उसको क्या मसला आएगा कि वो फिर हायर वेज डिमांड करेगा, वो खुशी खुशी काम नहीं करेगा, ही विल लुक फॉर अदर जॉब्स वेयर ही कैन अर्न मोर, because obviously he can not earn a respectable living for himself and his family. All right, okay. Secondly, अब कंज्यूमर्स जो हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दे विल बिकम मोर प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव का मतलब है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में प्राइस को बहुत ज्यादा देखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, और देन ओनली दे विल बाय। ठीक है, अब वो कोशिश करेंगे कि वो बार्गेन करा के अपने पैसे कम करा लें। द रीजन बीइंग बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी नाउ एज वेल। तो उनको अपने पैसों को ख्याल से खर्च करना है, बिकॉज पैसे उतने ही है, बट द वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्रीज्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव रैपिड इन्फ्लेशन विल ऑफन लीड टू हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जब आपकी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करता है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ डिमांड पुल। what does the government do? They try to increase the interest rate so that borrowing becomes less. borrowing का मतलब होता है लोग पैसे कम बोरो करें, और वो कम बोरो करेंगे तो वो कम डिमांड करेंगे चीजों को, और जब कम डिमांड करेंगे चीजों को तो आगे से क्या एडवांटेज होगा कि वो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ डिमांड, जो आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। लेकिन अब जब आप कम बोरो करोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं बनेंगी। ठीक है, जैसे बैंक्स हैं वो तो इंटरेस्ट पे जाते हैं, या देर आर अदर कंपनीज जो इंटरेस्ट पे सरवाइव कर रहे होते हैं, तो आप उनको देखोगे कि दे विल बी इन अ ह्यूज मेस। ठीक है, उसके अलावा कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कैश फ्लो का मतलब होता है कैश कमिंग इन एंड गोइंग आउट। ठीक है, तो अब कैश फ्लो प्रॉब्लम कैसे आता है? as businesses struggle to find more money to pay the higher cost of materials and other costs। अब जो आपने पैसे इन्वेंट्रीज के देने हैं, जो पैसे आपने अपने करंट लाइबिलिटीज के देने हैं, you do not have that cash because of increasing cost। तो आपको ओवरऑल सरवाइव करना मार्केट में एक मुश्किल काम लगने लगता है। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा मेजर बात इन्फ्लेशन की होती है कि वो अनसर्टेनिटी ले आता है। What is uncertainty? Uncertainty means not that no one is aware what is going to happen in the future। ठीक है, price, will the prices continue to rise, या will the rate of inflation go up again, या will the government take any corrective action जो business के लिए profitability कम कर सकता है। The point is कि शायद दीज अनसर्टेनिटीज जो भी आप फोरकास्ट कर रहे हो वो इतना रिलायबल ना हो, लेकिन द गवर्नमेंट विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग दो सेल फोरकास्ट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, ताकि वो अपना एक कैश फ्लो बता सके, सोच सके, प्रॉफिट सोच सके, अदरवाइज द बिजनेस विल नॉट सरवाइव। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इफ इन्फ्लेशन इज हायर इन वन कंट्री देन इन अदर कंट्रीज द बिजनेस विल लूज competitiveness इन ओवरसीज मार्केट्स। इसका मतलब है कि अगर आपके एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, मतलब आप यहाँ गुड्स बना रहे हो अपनी मार्केट में और वो महंगे बन रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, तो आप एक्सपोर्ट करते हो उनको, वो महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो लोग उधर के खरीदेंगे नहीं, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये प्रॉब्लम क्यों आई? इन्फ्लेशन की वजह से। Businesses that sell goods on credit will be reluctant to offer extended credit periods। क्यों? बिजनेसेस जो आपको उधार पे माल देते थे, लाइक दे यूज्ड टू गिव यू रॉ मटेरियल्स, ठीक है, तो वो रिलक्टेंट हो जाएंगे बिकॉज दे वुड बी अनश्योर कि ये ना हो कि इनके पास पैसे ही ना हो हमें रीपे करने के, यही नहीं पता कि इस वक्त पैसे की वैल्यू कितनी गिर रही है,
सो दे वुड वांट कि हम कैश पे ट्रांजैक्शंस करें, और जब आप कैश पे करते हो तो बहुत से लोग नहीं खरीदते, ठीक है, दे ओनली लाइक क्रेडिट इन बिजनेसेस. Consumers may stockpile some items and cut back on non-essential items of spending. ये बड़ा important point है. Consumers at the time of inflation only go for necessities. They believe that luxury goods का time हमारे पास है ही नहीं, because we do not have the cash to control this. ठीक है. अब uncertainty period कब आया था? Last year जब COVID आया. So that was an uncertainty period and no one was aware whether their job will remain or not. ठीक है. Because of this सबने क्या सोचा कि भाई अभी तो पैसे सेव करने का टाइम है इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग मनी. तो हम में से किसी ने भी उसको कोई फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च नहीं किया कि कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहा है, कोई टीवी खरीद रहा है, कोई मोबाइल्स खरीद रहा है. नो वन वाज डूइंग दैट. एवरीवन वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर द बेसिक नेसेसिटीज कि भाई आपके पास फूड सप्लाई होनी चाहिए, जो भी बेसिक आइटम्स टू सर्वाइव हैं, यू ओनली वेंट फॉर दोज आइटम्स इंस्टेड ऑफ लग्जरी आइटम्स. ठीक है. Now tell me, is there a problem up till now what we've discussed? Any point that is unclear? No, sir. Sir, can you please tell me what inflation exactly means? Okay, inflation exactly is the general increase in the price level. ठीक है. General increase in the price level का मतलब है the goods that were for example costing you 1000 rupees are now costing you 1100 rupees. That means कि आपकी overall prices increase हो गई हैं. एक बात. Second point is that your real value of money is decreasing. वो मैंने आपको उसके थ्रू बताया था that when you have the same amount of money, for example I told you that with 100,000 rupees you can had like you can consume 1000 liters of petrol. Now with that same 100,000 rupees you can only consume 800 liters of petrol. सो पैसे उतने ही रहे, लेकिन क्योंकि बाइंग पावर कम हो गई, और वो बाइंग पावर कम क्यों हुई? वो बाइंग पावर इसलिए कम हुई कि आपकी इन्फ्लेशन से पैसे बढ़ गए चीजों के. ठीक है. नाउ इज दिस क्लियर सायरा? Gee, sir, I got it. Thank you. ओके. सो अब हम बात करते हैं, अगर बहुत like it's a rapid inflation period, so what can the business do? What would be their strategy? So their strategy would be that they will have to cut back on investment. कट बैक ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप इस टाइम पे कोई नए एसेट्स नहीं खरीदोगे, कोई नई एक्सपेंशन का नहीं सोचोगे, क्योंकि ये सर्वाइवल पीरियड होता है. ठीक है. सेकेंड इज कटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू लिमिट देयर ओन प्राइसेस टू स्टे एज कंपेटिटिव एज पॉसिबल. इसका मतलब है कि वो इन बिजनेसेस को थोड़ा सा सरवाइव करने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अपने थोड़े प्रॉफिट्स कट डाउन करें. कट डाउन करेंगे तो ही इनके गुड्स जो हैं वो इतने सस्ते होंगे दैट पीपल बाय इट. लेकिन अगर वो बोलेंगे इन्फ्लेशन के टाइम भी हम उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जितना वी वर डूइंग इट बिफोर दैट, सो इवेंचुअली द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स विल फॉल. The third point is reducing borrowing to levels at which the interest payments are manageable. ठीक है. अब आपको बोरोइंग कम करनी है. वो इसलिए कम करनी है क्योंकि यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट बोरोइंग, और इंटरेस्ट पे करना जो है इस टाइम में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है. तो इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज का बहुत ख्याल रखो दैट यू डोंट टेक अ लॉट ऑफ लोन्स. रिड्यूसिंग टाइम पीरियड फॉर कस्टमर्स टू पे, क्योंकि आपको अपना कैश फ्लो इम्प्रूव कराना है, सो यू वुड वांट कि आप अपने कस्टमर्स को बता दो कि अगर हम पहले आपको 1 मंथ देते थे टू पे, नाउ वी वुड लाइक दैट यू रिटर्न अस आवर मनी इन 15 days so that we do not have a cash problem and we could pay our current liability as soon as we get cash from you. ऑल राइट. एंड रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, कोशिश ये होगी कि शायद यू विल हैव टू ले ऑफ सम पीपल, क्योंकि आपकी डिमांड फॉर गुड्स इज डिक्रीजिंग.
तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, सो यू वांट टू कंट्रोल दिस एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ठीक है। अच्छा, बिजनेस जिनके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वुड फाइंड दैट दे वर मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रीपेमेंट्स ऑफ द डेट मनी that had gained in value since the original loan was taken out. This will discourage borrowing to invest. अब ओवरऑल आप वही बात है that you would try not to borrow a lot of money because of the interest payments and because of the value decreasing over time. ठीक है, इसलिए आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से हम कम से कम लोन लें इस टाइम में। Okay. Then, as prices fall, so the future profitability of new projects appear doubtful. तो इस वजह से फर्म्स जो हैं वो अभी कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। होल्डिंग्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स विल बी फॉलोइंग इन वैल्यू। अगर आपके पास कोई पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो उसकी एक्चुअली वैल्यू गिरने लगेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्यों गिरने लगेगी? उसकी वैल्यू इसलिए गिरने लगेगी, this is what we're talking about deflation. Sorry, deflation means that your prices are decreasing. ठीक है, तो अगर आपकी प्राइसेस डिक्रीज करती हैं तो आप कोशिश ये करते हो कि सबसे पहले दैट यू डू नॉट परचेज आइटम्स। जब आपको पता है कि आगे प्राइसेस गिरने वाली हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को भी कम कर देते हो, मतलब इन्वेंट्री भी कम परचेज करते हो। और टिल द पॉइंट जब डिफ्लेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप एसेट्स भी परचेज नहीं करते, क्योंकि पता है ना आगे फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है। और सेकंड इज कि जब आपको मतलब आपने अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो अगर डिफ्लेशन हो गई तो आपको यू विल हैव टू रिटर्न मोर मनी इन टर्म्स ऑफ लाइक द रियल इनकम। तो फिर आप कहते हो कि मैं बोरोइंग भी कम करूं। ओके, फिर आपको ये पता होता है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट कर भी दोगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में तो क्योंकि डिफ्लेशन हो रही है सो योर प्रोडक्ट्स विल सेल एट अ लोअर प्राइस। इसलिए यू डू नॉट वांट दिस टू हैपन और आप कम से कम इन्वेस्ट करते हो। फिर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो आपने इन्वेंट्री खरीद के रख ली है वो इन्वेंट्री जो है वो आपको मतलब वो वैल्यू उसकी कम होने लगती है। भाई आपने अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज के एक चीज खरीदी थी, नाउ व्हेन डिफ्लेशन हैपेंस दैट मींस द प्राइस लेवल इज डिक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन इज कि उसी 100 रुपीज को आप समझो 90 रुपीज पे आ गया वो, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका जो है वो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ वी डन विद इन्फ्लेशन। मुझे ये बता दो एनी क्वेश्चंस विद इन्फ्लेशन, देन वील मूव ऑन टू अनएम्प्लॉयमेंट। एनी क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लेशन? No question, sir. Okay, so just give me a minute. Okay, now we're moving to the third objective, that is low unemployment. अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट से क्या चीज समझ आती है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, अब एक होती है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन। वो वर्किंग पॉपुलेशन यूजुअली 18 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में जो भी लोग आते हैं, all those in the population of working age, और working age usually 18 to 60 होती है, who are willing and able to work, आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि उस वर्किंग पॉपुलेशन में से उन लोगों में से हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड दे आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब, वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसके तीन टाइप्स होते हैं, लोग उसको कॉज भी बोलते हैं, टाइप्स भी होते हैं। एक होता है सिक्लिकल। सिक्लिकल का मतलब होता है कि ये आपकी बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। बिजनेस साइकिल वी डिस्कस्ड यस्टरडे, द बूम, रिसेशन, स्लम्प, देन अगेन बूम। तो जो रिसेशन वाला स्टेज होता है ना उसके अंदर द डिमांड फॉर गुड्स आर लेस और वो कम होती जाती है, बिकॉज ऑफ विच फर्म्स या बिजनेसेस हैव टू ले ऑफ वर्कर्स। ले ऑफ का मतलब है
उनको निकालना पड़ता है। भाई जाहिर है अगर डिमांड नहीं होगी गुड्स की, अगेन लेट्स रिवर्ट बैक टू आवर कोविड एग्जांपल, when there was less demand for the goods and services, so many firms had to lay off workers। ठीक है, वो क्यों ले ऑफ किया? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जरूरत ही नहीं थी, और जब जरूरत नहीं थी तो आपने उनको निकाल दिया। तो सिक्लिकल होता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइकिल। अगर आपका रिसेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अगर बूम है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, मोर पीपल विल बी हायर्ड। ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जिस तरीके से आपका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान यूज टू रिलाई इन द 1970s ऑन एग्रीकल्चर ओनली। फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रहे थे। अब जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए तो लॉट ऑफ पीपल वर पेड गुड अमाउंट्स अगर उनको इंडस्ट्री में काम करना आता था, बट वो जो एग्रीकल्चर वाले लोग थे वो पीछे रह गए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंज हुआ, तो वो एग्रीकल्चर वाले लोग जो हैं उनको वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है। सिमिलरली जब कंप्यूटर्स आए तो जो लोग टाइपराइटर पे काम करते थे एंड दे यूज्ड टू बी द क्या बोलेंगे, जो वो टाइपिंग करते थे टाइपराइटर्स पे, तो उनको वर्ड और एक्सेल यूज करना नहीं आता था, तो उनकी जॉब्स इसलिए चली गई क्योंकि बिजनेसेस ने जो है वो कंप्यूटर ले लिया और वो कंप्यूटर पे काम करने लगे, और टाइपराइटर्स वाले जो हैं वो बेचारों की जॉब चली गई। ठीक है। नेक्स्ट इज अब ये वाली जो आपके पास अभी हमने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, ये कब कब होता है? Change in consumer taste and expenditure patterns, possibly resulting from higher incomes। अब आपके पास अगर कंज्यूमर का ही टेस्ट चेंज हो गया, दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज चेंजिंग। ठीक है। इसलिए जो है आप अब बहुत से लोग सर्विस इंडस्ट्री की तरफ बहुत चले गए। अ लॉट ऑफ कस्टमर्स विश टू ईट आउटसाइड रेस्टोरेंट्स में और इसमें, तो इस वजह से योर स्ट्रक्चर हैज मूव टुवर्ड्स द सर्विस इंडस्ट्री। इसलिए जो लोग प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, नाउ दे कैन नॉट सरवाइव। ठीक है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। वर्कर्स इन सम इंडस्ट्रीज में फाइंड द डिमांड फॉर देयर सर्विसेज डिक्लाइनिंग। ये वो टाइपराइटर वाला एग्जांपल है कि भाई अब आपके वो वाले वर्कर्स जो होते थे, या पहले देयर यूज्ड टू बी पीपल हु यूज्ड टू राइट वेरी नीटली, और आपको उनकी जरूरत पड़ती थी कि भाई आप हमारे बिजनेस लेटर्स और ये सब लिखो। Now with computers coming in, these people have lost their jobs। फिर तीसरा ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हेवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। जब आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनी, तो पीपल हु कुड वर्क ओवर हियर, they started to earn well, and people who did not know how to work over here, उनके पास से jobs जाना शुरू हो गई, या even if they were working, they were working at a very low pay scale। और lastly, improvements in technology in many industries have meant that employers are looking for adaptable and multi-skilled workers। अब जब आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, तो आपको वो वर्कर्स चाहिए जो मशीन्स ऑपरेट कर सकें। आप इंस्टेड के आप उन वर्कर्स की बात करो जो बाकी काम कर रहे हो। ठीक है। Our meeting is about to end in 5 minutes, लेकिन we'll continue after that। अभी तो we'll continue। ओके। अब लास्ट होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब तक जाने में जो आपको टाइम लगता है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं बोलूं कि फॉर आई एम नॉट हैप्पी विद माय करंट जॉब एंड आई वांट टू स्विच। ठीक है। सो वन फाइन डे आई गो एंड टेल माय लाइन मैनेजर दैट आई एम रिजाइनिंग, और मैंने वहां जाके जब रिजाइन कर दिया, तो जितना भी टाइम मुझे लगा नेक्स्ट जॉब ढूंढने में, दैट वुड बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। वो जो टाइम है जिसके अंदर मुझे जॉब नहीं मिल रही थी या मैं जॉब ढूंढ रहा था, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ओके। अब गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है?
गवर्नमेंट पॉलिसी ये है, सिक्लिकल में गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू मैनेज द इकोनॉमी सो एज टू अवॉइड सब्सटेंशियल स्विंग्स इन द बिजनेस साइकिल। अब क्योंकि ये बिजनेस साइकिल से रिलेट करता है, तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो बिजनेस साइकिल को थोड़ा सा कंट्रोल में रख ले, ठीक है, और बिजनेस रिसेशन ना हो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सेकंड इज इन्फ्लेशन कम रहे, इन्फ्लेशन कम रहेगी तो जाहिर है आपके वर्कर्स को ले ऑफ नहीं किया जाएगा और वो जॉब पे रहेंगे। थर्ड इज गवर्नमेंट में ऑल्सो एम टू मेंटेन अ competitive रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज सही होगा, डेप्रिशिएट नहीं करेगा या बहुत ज्यादा एप्रिशिएट नहीं करेगा, तो आपके एक्सपोर्ट्स चलते रहेंगे, एक्सपोर्ट्स चलते रहेंगे तो आपके वर्कर्स की डिमांड हाई रहेगी, ठीक है। What about structural? Structural का क्या है? The aim of government is to prevent the economic changes that lead to structural unemployment. This would be standing against economic change and progress. Structure की हमने बात की थी कि आपकी जब overall structure of the economy is changing, then structural unemployment happens. तो अब गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगा कि इकोनॉमिक चेंजेस इस तरीके के ना आए कि आपका स्ट्रक्चर इतना चेंज हो जाए दैट पीपल स्टार्ट लूजिंग जॉब्स। सेकंड इज इट गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि वो वर्कर्स जो इतने स्किल्ड नहीं थे इन चीजों में उनको स्किल मिल जाए एंड दे सर्वाइव इन दिस न्यू स्ट्रक्चर। The third one is UK government's New Deal program has offered training courses to all the people who are unemployed. ठीक है, अब ये वो लोगों को भी जो भाई काम कर रहे हैं उनको भी और जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी, उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए सो दैट दे अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हो सकता है वो मशीन चलाना सीख रहे हो सकता है वो कंप्यूटर्स चलाना सीख रहे हो, एंड द रीजन बीइंग बिकॉज दे वांट कि ये लोग इस तरह से सरवाइव कर सकें। ओके, देन वी हैव फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है, द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर मार्केट कैन बी इम्प्रूव्ड। इसका मतलब है कि आपकी जॉब्स प्रॉपरली एडवर्टाइज्ड हो, ठीक है, लोगों को प्रॉपर नॉलेज हो कि भाई यहाँ जॉब अवेलेबल है। And frictional unemployment reduced by the provision of information about job opportunities। यही मैंने आपको बताया, कोई जॉब सेंटर्स हो, कोई प्रॉपर एजेंसीज हो जहाँ पे कम्प्लीटली ये बताया हुआ हो कि ये जॉब्स आई हुई हैं, आप जल्दी अप्लाई करोगे तो इंटरव्यूज और ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, एंड बेसिकली यू कैन रिड्यूस द टाइम इन विच यू कैन फाइंड अ जॉब, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कॉस्ट क्या है उसकी, दैट मीन्स व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वी डिस्कस्ड कि इकोनॉमी जो है वो ज्यादा गुड्स बना सकती थी, दे आर नॉट मेकिंग द सेम लेवल ऑफ गुड्स क्योंकि कम लोग काम कर रहे हैं। अगर सब काम करेंगे तो ज्यादा गुड्स बनेंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट इज दैट यू हैव टू सपोर्ट द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है, तो आपको अपने टैक्सेस में से उनको पैसे देने पड़ने। तीसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, योर क्राइम रेट्स इंक्रीजेज। आपको ये पता होता है कि दिस इज अ ह्यूज कॉस्ट टू द सोसाइटी। अब वो लोगों को सर मतलब वो लोग इस बात पे गुस्सा हो जाए दैट वी नॉट अर्निंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर आवर फैमिलीज, सो दे ट्राई टू रॉब यू, दे ट्राई टू किल यू समहाउ और द अदर, दे ट्राई टू मेक श्योर कि उनके पास पैसे आ रहे हों, ठीक है। फिर क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो आपके पास ओवरऑल द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो रिड्यूसेस, तो फिर फर्म्स की इनकम कम हो जाती है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं, और जितना पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है उतना फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू फाइंड जॉब, क्योंकि वो आउटडेटेड होते जाते हैं, ठीक है। सो वी डन विद अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन जो अब हम विल स्टार्ट इन 10 minutes, we'll be doing balance of payment, and I think that would be the last balance of payment or exchange rates।
So there are like 2 to 3 pages left that needs to be done. Okay, so we'll start in the next 10 minutes now because the meeting is about to end.